تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب سلطنت، حکیمانہ فیصلہ اور عادلانہ تقدیر والا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے سرنگوں ہے، ہر بندہ اس کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ہم شکر گزار بندوں کی طرح اس کی حمد کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے استغفار کی طرح اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خشوع و خضوع اور محبت و یقین رکھنے والے شخص کے جیسی گواہی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ نے اس امت کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا۔ اللہ شب و روز آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے اور ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کریں اور ان کے منہج پر گامزن رہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے کوتاہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی دلوں کا توشہ اور نجات کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معزز کتاب میں ہمیں حکم دے رہا ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف گزرے ہوئے واقعات کی روایت کا نام نہیں، اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں پڑھے جانے والے صفحات کا نام ہے، بلکہ یہ زندگی سے پرپیغام کا احیاء ہے، اور ایسی زندہ سیرت ہے جو دلوں کو انسیت بخشتی ہے، ضمیروں کو زندہ کرتی ہے، اندھیرے میں رہنمائی کرتی ہے، اور فتنوں کے زمانے میں بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ سبق سے بھرا سفر ہے، گود سے لے کر گور تک، غار ہرا کی تنہائی سے جہاں وحی کا آغاز ہوا، مدینے کے ممبر تک جہاں رسالت کا کھلا کھلا اعلان کیا گیا، یتیمی اور آزمائش سے لے کر قیادت اور اقتدار تک، علم کی پہلی ندا اقرا سے لے کر آخری لازوال وصیت نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن یتیمی کمزوری نہیں، گرچہ ظاہر میں یہ محرومی لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تفوق کا محرک ہے۔ پہلے اللہ پر توکل کا ذریعہ ہے، اور پھر یقین و استقامت کے ساتھ خود اعتمادی کا نام ہے۔ جب یتیمی عزم سے مل جائے تو شعلہ بن جاتی ہے جو راستے کو روشن کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے، اور ان سے پہلے اور بعد کے عظیم لوگوں کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کتنے ہی یتیموں نے اپنے نام نہ مٹنے والے لوگوں کے دفتر میں درج کرائے، ایمان کی بدولت بلندی کو پہنچے، علم سے آراستہ ہوئے اور عمل سے بلندیوں کو چھو لیا، یہاں تک کہ وہ ترقی کے پیشوا اور تہذیب بنانے والے بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ایسی شادی تھی جو خالص محبت، پائیدار وفا، مودت، رحمت اور سچی شراکت پر مبنی تھی، اور جس گھر کی بنیاد ایسے بلند اقدار پر قائم ہو اسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، نہ اختلافات اسے کمزور کر سکتے ہیں اور نہ ہی معمولی وجوہات اسے گرا سکتی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کی، جہاں اللہ کی بادشاہت میں آپ غور و فکر کرتے، جبریل امین علیہ السلام نے انسانیت کا عظیم ترین پیغام لے کر نزول فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ محض پڑھنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی امت کے جنم کا اعلان تھا جس کا نعرہ تھا اللہ کے نام سے پڑھو، جس کا منہج علم تھا اور جس کا قلعہ ایمان تھا۔ اس ابدی پیغام کا آغاز پڑھو سے ہوا تاکہ بنیاد ڈالے ایک ایسے انسان کی جو سمجھے، ایسے دماغ کی جو سوچے، ایسے دل کی جو ایمان لائے، اور ایسی قوم کی جو وحی کے نور سے عروج حاصل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹے تو وحی کے پہلے تجربے کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس وقت انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے بڑھ کر مشفق اور سچی کوئی پناہ گاہ نہ ملی۔ انہوں نے آپ کو دانشمند عورت کی سکونت اور محبت بھرے دل کی مضبوطی کے آغوش میں لے لیا، اور اپنے وہ تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے آپ کے دل کو سکون عطا کیا، ہرگز نہیں، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور ان سب کی بنا پر اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جس نے اپنے نبی کا راستہ اختیار کیا اس نے احسان کو اپنا طریقہ، رحمت کو اپنی عادت اور نبوت کو اپنا قدوہ بنایا۔ دعوت کے کام میں نبوی منہج تعلیم الہی پر مبنی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات ایسی عمدہ گفتار سے ہوئی جو دلوں کو چھو لیتی تھی، ایسے خوبصورت صبر سے جو رکاوٹوں کو زیر کر دیتا تھا۔ آپ نادانی کا بردباری سے جواب دیتے اور سختی کا مقابلہ نرمی سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک جاری رہنے والی تھی، نہ کہ تھوپی جانے والی سطوت و قوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، یعنی حیرت زدہ انسان کے لیے رحمت، سخت دل کے لیے رحمت، نرمی بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ بردباری، یہاں تک کہ سخت ترین حالات میں بھی جہاں جہالت کا جواب جہالت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا، نہیں
सख्ती का सख्ती से बल्कि नरमी से दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ा और मोहब्बत से बंद दिलों को खोला। आज जबकि बातों की कसरत है, लड़ाई झगड़े का उरूज है, हकीमाना उसलूब की किल्लत है, हमें इस बात की अशद जरूरत है कि हम इस शरीफाना मनहज नबवी की तरफ रुजू करें जो अक्लों को हिकमत से और दिलों को रहमत से मुखातब करता है, जो अल्लाह की तरफ ऐसी नरमी से बुलाता है जो जिंदगी अता करती है, न कि ऐसी सख्ती से जो मुतनफिर कर देती है। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बात करूं तो अल्फाज उनका हक अदा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक थे, चलती फिरती रहमत थे, दरगुजर करना आपकी खसलत थी और सखावत आपकी आदत थी, तवाज़ु आपका तरीका था। आप अपने ऊपर जुल्म करने वाले को माफ कर देते थे, कत्ल करने वाले से सिला रहमी करते थे, अपने से बदसलूकी करने वाले पर करम फरमाते थे, गमज़दा की गमख्तारी करते, यतीम के सर पर हाथ फेरते, छोटे पर रहम करते, बड़े की इज्जत करते, मालदार और फकीर के दरमियान फर्क नहीं करते, अपने सहाबा के साथ ऐसे बैठते, उनकी बातें सुनते, उन्हें मानूस करते जैसे कि वो उन्हीं में से एक हों। उसके बावजूद आपकी हैबत लोगों पर तारी रहती और आपकी मोहब्बत दिलों को कैद कर लेती थी। ग़ज़वा उहद में आपके मुक़द्दस सर पर जख्म आया, पाक चेहरा लहू लहान हुआ, पाकीज़ा खून बहा, मगर जख्मों के दर्द के बावजूद आपके दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा न हुआ। नहीं आपकी जुबान ने वही सुनाई, बल्कि आपने अपने जख्मों और दर्द से ऊपर उठकर एक अजीम पैगंबर का मौक़िफ़ अपनाते हुए फरमाया, अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा, ये नादान है। फतह मक्का के दिन जब उन लोगों को घेर लिया गया जिन्होंने आपको इज़ाएं दी थी और आपको निकाला था, वो आपके सामने सर झुकाए खड़े थे और आप मुकम्मल कुव्वत इक़्तिदार में थे, सख्त तरीन सजा देने पर कादिर थे, मगर आपने तलवार नहीं चलाई बल्कि माफी का फैसला सुनाया और अजीम हस्तियों का फरमान सुनाया। आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सोचिए अगर कोई कौम इस अजमत को अपना ले तो उसका क्या मकाम होगा, कितना अच्छा होगा अगर लोग इस अखलाक से सैराब हो जाएं और इनके दिल इस खुशबू से भर जाएं और लोग मामलात में किस कदर पाकीज़ा, ताल्लुकात में कितने बुलंद, इत्तिहाद में कितने मजबूत और कुव्वत व ग़लबा और अजमत के दरजात में कितने बुलंद होंगे। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पैमाने पर अजीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कायद थे जो ईमान और सदाकत पर लोगों की तरबियत करते थे, एक ऐसे हाकिम थे जो उम्मत की बागडोर संभालते और तहजीब व तमद्दुन की बुनियादें इस्तेवार करते, एक ऐसे शफीक शवर थे जो घर की जिम्मेदारियां मोहब्बत से निभाते, एक ऐसे शुक्रगुजार बंदा थे जो रात की तारीकी में अपने रब के सामने खड़े होते यहाँ तक कि आपके दोनों कदम सूझ जाते, एक ऐसे हकीम मुसले थे जो सूझबूझ, दानिश्वरी और रहमत से मुआशरे का मुदावा करते। गर्ज ये कि इन तमाम पहलुओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिद नमूना और फरमाबरदारी और इक़्तिदा के मुअल्लिम थे। हज्जतुल्लाह के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में मोमिनों के दरमियान खड़े हुए, लाखों की तादाद खामोश खड़ी है ताकि तारीख का अजीम तारीख खुतबा सुने। ऐसा तारीख खुतबा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के रोड में पेश किया और बका के निशानात और गलबे के असबाब मुतय्यन किए, लोगों के दरमियान मसावत का ऐलान किया और उन तमाम छोटी बर्तरियों को खत्म किया जो हसब व नसब, मालो जर, रंगो नस्ल पर कायम है और दिलों में एक वाहिद रब्बानी पैमाना यानी तकवा को पैबस्त किया। क्या फरमाया, सुन लो, किसी अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर कोई फजीलत है सिवाय तकवा के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ उसने सलूक की वसीयत फरमाई, जुल्म से डराया, खून और इज्जतों की हुर्मत याद दिलाई और अदल और रहमत के उसूलों को कायम फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अजीम खुतबा एक दायमी वसीयत पर खत्म पाया जो नजात की रस्सी और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का दस्तूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उसको मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह न होगे। अल्लाह की किताब और मैंने सुन्नत में ये बात कह रहा हूँ और अपने लिए और आप तमाम के लिए अल्लाह तबारक तआला से मग़फ़िरत तलब करें। वो अल्लाह तबारक तआला बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने रसूल को हिदायत की राह दिखाने वाला और हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर महबूस फरमाया। मैं उस पाक ज़ात की बहुत ज्यादा हम सना करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी ने मखलूकात को पैदा किया और तकदीरों को मुकर्रर फरमाया। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं जिन्हें उनके रब ने तमाम जहानों के लिए भेजा और उनके जरिए बहुत से सीनों को कुशादा फरमाया। अल्लाह ताला आप पर, आपके अहले बैत और सहाबा किराम पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजता रहे जब तक रात तारीक रहे और दिन रोशन व ताबा रहे आबाद। मैं तुम्हें और खुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत पहुंचा दिया, अमानत अदा कर दी, एक उम्मत की तरबियत की और एक अजीम तहजीब कायम की, तो उनके आखिरी जाम में बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, बल्कि आपकी आखिरी वसीयतों में से एक ये थी, नमाज नमाज और उनके बारे में भी अल्लाह से डरो जो तुम्हारे मातहत हैं। इसलिए नमाज का मकाम बहुत अजीम और उसकी अहमियत बहुत बुलंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी लम्हों में लोगों की तरफ तशरीफ लाए, मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देखा, वो या दिल ही दिल में उनसे रुखसत हो रहे हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में अपनी पाकीज़ा रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। मदीना मुनव्वरा रज़ उठा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बुझा नहीं, नहीं आपकी सुन्नत मान पड़ी, बल्कि वो मुमिनों के दिलों में जिंदा और उम्मत की जिंदगी में रासिख रही। जिस्म तो वफात पा गया लेकिन असर बाकी रहा और उम्मत की गर्दनों पर अमानत बाकी रह गई जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चले, उनकी सुन्नत को जिंदा रखें और उनके पैगाम को तमाम जहानों तक पहुंचाएं। तो जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता है तो उसे चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले और अपनी जात, अपने घराने, अपने मुआशरे में आपकी सुन्नत को जिंदा करे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ जुबान का दावा नहीं बल्कि अमल के जरिए इत्तिबा का
नाम है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ऐ अल्लाह अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज। इतनी तादाद में जितनी बार याद करने वालों ने आपका जिक्र किया और जितनी बार गाफिलों ने आपके जिक्र से गफलत इख्तियार की, ऐ अल्लाह हमें आपके सच्चे पैरोकार बना और हमें आपकी सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारे दिलों को आपकी मोहब्बत से भर दे और हमारे कदमों को आपके रास्ते पर कदम रख। ऐ अल्लाह हमें आपकी शफाअत से महरूम न कर, हमें आपके हौज से पिला, हमारी जिंदगी को आपकी हिदायत से भर दे और हमारे रास्तों को आपकी सुन्नत से रोशन कर दे और हमें जन्नत के आला दर्जे फिरदौस में आपके साथ जमा फरमा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह चारों खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उस्मान और अली और आपके अहले बैत और आपके सहाबा के नाम से तू राजी हो जा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे, अपने मोमिन बंदों की मदद कर और इस मुल्क और तमाम मुस्लिम मालिक को अमन सुकून का गहवारा बना। ऐ अल्लाह हम तुझसे जन्नत और उस तक पहुंचाने वाले हर कौल और अमल का सवाल करते हैं और हम तेरी पनाह में आते हैं आग से और उस तक पहुंचाने वाले हर कौल और अमल से। ऐ अल्लाह हम तुझसे तमाम भलाइयों के आगाज, इख्तिताम, जामियत, ज़ाहिर और बातिन का सवाल करते हैं और हम तुझसे जन्नत के आला दर्जात मांगते हैं। ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह हम दीनो दुनिया और आखिरत में तुझसे अफ़्व, आफियत और हमेशा की माफी दरख्वास्त करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारे खौफ को मामून कर दे, हमारे सामने पीछे दाएं बाएं और नीचे से महफूज कर, हमें तेरी अजमत की पनाह लेते हैं। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरी नेमतों के जवाल, तेरी आफियत के बदल जाने, तेरे अजाब के अचानक आने और तेरे तमाम गुस्से से पनाह मांगते हैं। अल्लाह तू बखूबी जानता है कि फलस्तीन के अहले ईमान पर क्या मुझसे बताई और उन्हें क्या नुकसान पहुंचा है। तू ही इसे दूर करने की कुदरत रखता है। जमीन और आसमान में तेरे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। अल्लाह उनसे परेशानी दूर फरमा, उनका मुहासरा खत्म कर और उनके लिए मददगार और नसीर बन जा, उनका सहारा और मुहाफिज बन। अल्लाह वो भूखे उन्हें खिला, प्यासे उन्हें पिला, नंगे पैर हैं उन्हें सवारी दे, नंगे बदन उन्हें लिबास दे, खौफजदा है उन्हें अमन दे, उनके दिलों को मजबूत कर, उन्हें उन पर जुल्म करने वालों पर फतह दे। अल्लाह कमजोरों के मददगार, ऐ तकवाकार, ऐ जब्बार उनके दुश्मनों, जुल्म करने वाले सहूलियों पर उनकी मदद फरमा। अल्लाह उनकी सफ़े मुंतशिर कर, उनका इत्तेहाद खत्म कर और उन्हें बड़े गालिब कवी पकड़ने वाले की तरह पढ़ ले। उन पर अपना वो आजाब हमें दिखा जो जालिम कौमों से कभी नहीं हटता। ऐ अल्लाह उनका कोई आलम बुलंद न कर, उन्हें उनके मकासद तक न पहुंचने दे और उन्हें एक इबरत और निशानी बना दे। ऐ अल्लाह अपनी नजात जल्द नाजिल कर, फलस्तीन के लोगों के ऐसी नुसरत कर जो उनके परचम को बुलंद कर दे, उनका हक दिला दे, उनकी जमीन अमन और इज्जत उन्हें वापस लौटा दे अपनी रहमत से। ऐ अरहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह अपने घर के हुज्जाज की हिफाजत फरमा, उन्हें तमाम बुराइयों और गुनाहों से बचा, उनके सफर को आसान फरमा और उन्हें सलामती और कामयाबी के साथ उनके घर वापस लौटा। ऐ अल्लाह हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफैन को अपनी पसंद और रजा की तौफीक दे और अपनी हिदायत की और उनके तमाम अमाल को अपनी रजा के लिए बना और उनके वलीअहद को हर खैर की तौफीक दे। उन दोनों को इस्लाम और मुसलमानों के लिए फायदा मंद बना और तमाम मुसलमानों के हुक्मरानों को तेरी किताब और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक दे। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। बेशक अल्लाह इंसाफ, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। बस तुम अल्लाह अज़ीम को याद करो, वो तुम्हें याद करेगा और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा देगा। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो।